वहां पर बीजेपी जीती। और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। The Battle of Bihar is heating up and the opposition was out today in full strength. Leading the charge was Rahul Gandhi along with Tejaswi Yadav, Dipankar Bhattacharya and the other leaders of the India Gathbandhan on this massive rally against the Election Commission's special intensive revision drive which is being conducted in Bihar. This is being seen as a political drive. This is being seen as something that could, at least the charge of these political parties of the opposition is help the BJP in the upcoming elections. Now this has become, remember, a big issue in Bihar, a state which is grappling with a law and order situation at this moment which is a big election issue. So is education, jobs and others. But on top of the agenda of the opposition parties was the SIR drive, against which a massive Bihar Bandh and this entire agitation was called in by the opposition parties. It has led to the war of words between the BJP and the opposition. Let's listen in to what happened today and the reactions coming in from this very rally. जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। So what is this entire controversy? Why is the opposition up in arms? Because the Election Commission says we are only doing it to root out or weed out the people, those who are not citizens of this country. But does the Election Commission even have that power to decide the citizenship? That's the big question, and that is why the opposition parties have also gone to the court. But let me very quickly give you a sense of what is happening and why is this under scrutiny. EC is conducting a revision of voter list. This was last done in 2003 and now is being done in 2025. But there is a lot of difference in what is happening. The first such revision since 2003 elections, since the 2003 voter list. Now remember, from 2003 till 2024 elections, the same voter list was being updated, amended and being used. But the exercise is being done just months before the assembly polls. The opposition says there is not enough time. And especially at a time when Bihar is suffering from floods, there are migrant workers, those who are in other states as well. Apart from that, the voters not in the 2023 list must give proof of birth and citizenship. 11 documents have been listed as far as this entire citizenship, how they can prove their citizenship. The very important Aadhaar card, your voter ID, ration card and Manrega card have been excluded from this. The BLOs are going to conduct house-to-house surveys, and then the voters will have to provide one of the 11 eligible documents, which include passport, birth certificate and others. The exercise is expected to be completed in a month. Now, that's the big question, that how will this exercise be completed in a month?
Why is this being happening? Why? Because rapid urbanization, migration, demographic changes, all that that is why Election Commission thinks that they would be able to do it. Their aim is to eliminate ineligible voters and illegal immigrants by this exercise. But as I said, there have been multiple questions which have been raised as far as this exercise is concerned, and with this, the question also being asked is that just before the election, is this an attempt to disenfranchise, to exclude a large number of voters? That's the big question, ladies and gentlemen, that people are asking. And can the Election Commission be burdened with people proving their citizenship? Is it not the job of other agencies? And then also the question, why is Aadhaar not eligible as a document? Aadhaar was supposed to be the card to end all cards. Those questions at this moment are up in the air and have become a big political face-off between the opposition and the Election Commission, with the BJP also supporting this exercise. Syed Shahnawaz Hussain, senior leader of the Bharatiya Janata Party, former union minister, former minister in the government of Bihar as well, is joining me at this moment. Shahnawaz साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for speaking to us at this moment. Let me begin by asking you, आज एक बहुत बड़ी एक पूरा रैली, एक मोर्चा, एक विरोध प्रदर्शन हमने देखा बिहार के अंदर. इंडिया ब्लॉक की सारी पार्टीज ने मिलकर किया. उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो एक्सरसाइज है, लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, उनको हटाने की एक्सरसाइज है. बिहार के चुनाव को चोरी करने की तैयारी है, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया. देखिए, पूरी तरह ये निराधार है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. मैं तो मानता हूं कि इलेक्शन से पहले वोट का वेरिफिकेशन होता है. ये वोट का वेरिफिकेशन है. इन लोगों के लिए अब एक चीज़ हो गया है, सॉफ्ट टारगेट तलाशना. तो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर ये इलेक्शन कमीशन को ले रहे हैं. जब कांग्रेस जीत जाती है कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, वायनाड में, रायबरेली में, तब इलेक्शन कमीशन अच्छा हो जाता है. और जब कांग्रेस हार जाती है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में, तो इलेक्शन कमीशन पर अपनी जिम्मेदारी थोप देते हैं. राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए क्या वजह है कि जनता उनसे नाराज है, रूठी. लगातार 3 लोकसभा के चुनाव हारे, क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से हारे? लगातार स्टेट में वो हार रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन की वजह से हारे? आज एक साजिश के तहत पूरी तरह बिहार के लोगों को बताया जा रहा है कि मुस्लिम के नाम काट दिए जाएंगे, यादव के नाम काट दिए जाएंगे, गरीबों के नाम काट दिए जाएंगे. कहीं से भी वोट वेरिफिकेशन में ये नाम काटे नहीं जाएंगे. जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा. बट शाहनवाज साहब, ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, जिसको वोट बंदी के नाम पर अब कह रहा है ऑपोजिशन, उसमें जाहिर सी बात है कि आप बिहार को बहुत अच्छा जानते हैं और लोगों से बेहतर जानते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं धर्म में जा ही नहीं रहा हूं, गरीब तबके के, ईबीसी, महादलित, बहुत लोग ऐसे होंगे. इस वक्त बाढ़ से बिहार जूझ रहा है, इतनी जल्दी में ये एक्सरसाइज की जा रही है. कहां से लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? आधार कार्ड को मान नहीं रहे हैं, मनरेगा कार्ड को मान नहीं रहे हैं, वोटर आईडी को मान नहीं रहे हैं, तो लोग डॉक्यूमेंट लाएंगे कहां से? देखिए, आधार कार्ड तो बहुत फर्जी बन गए हैं. आप जानते हैं कि जो अभी रिपोर्ट आई है, सीमांचल में 123% से ज़्यादा अब आधार कार्ड बन गए. तो जो पैमाना है उसको देखा जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट 11 मांगे गए हैं उसमें सब डॉक्यूमेंट लोगों के पास होते हैं. कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जो वैलिड वोटर है उसको परेशानी नहीं होने वाली. चुनाव आयोग एक बार नहीं अनेक बार कह चुका है. लेकिन ये लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर जहां बढ़ गए वहां हार गए. तो हम यहाँ वोटर बढ़ा कहाँ रहे हैं? वोटर जो वैलिड वोटर हैं वो वोटर वोट डाल सकेंगे, लेकिन कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया वो तो नहीं डाल पाएगा. तो उनके लिए दिक्कत होगा. लेकिन जो वोटर हैं, कई लोग होते हैं जिनका देहांत हो जाता है, वो वोट नहीं डाल सकते.
कई लोग हैं जो उनके 2 जगह वोट बने होते हैं, एक जगह सरेंडर करते हैं, वो तो एक रेगुलर एक जगह एक्सरसाइज भूल इलेक्शन जाते हैं, कमीशन एक की जगह होती है वोट ना, होंगे। तो ये स्पेशल ड्राइव की आवश्यकता बिल्कुल चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों पड़ गई, और 1 महीने का समय है, क्या आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक समय चुना गया है? इसीलिए लोगों को डर है कि कई लोगों के डॉक्यूमेंट बन नहीं पाएंगे, करोड़ों लोग रह जाएंगे। एकदम नहीं रहेंगे, करोड़ों लोग रहने वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग वोटर की मदद के लिए बना हुआ है, वोटर का वोट काटने के लिए नहीं बना हुआ है। ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये एक राहुल गांधी ने एक परसेप्शन बना लिया है और एक राय बना ली है। एक महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनको लगता था कि लोकसभा के चुनाव में तो वो बहुत सीट जीत गए और विधानसभा में कॉन्फिडेंट होकर घूमने लगे, पूरे देश दुनिया में घूम रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में जमीन पे जाने की वो जो कवायद है वो पूरी भी नहीं की, और जब जनता को लगा कि नहीं, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश में महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि काश हम अपने यहाँ से भी मोदी जी को सीट जीत कर देते, तो जनता को रियलाइज हुआ, तो जनता ने पूरी जमकर वोटिंग किया और हमें पर ये बताइए सर, मिला। जैसे इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो बर्थ सर्टिफिकेट की बात है, पासपोर्ट की बात है, बिहार में सर गांव वगैरह में जो गरीब लोग हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट बनवा के रखते होंगे? तो इसी वजह से क्या थोड़ा इसको समय और नहीं देना चाहिए था? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, देखिए बहुत बड़ी ड्राइव है, हर बूथ पर बीएलओ जाके इसको करने वाला है। इसके लिए पर्याप्त जितनी संख्या चाहिए कर्मचारियों की उतनी लगाई गई है, इसमें कहीं कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है। मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर में मैंने वहां पता किया, किसी को कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। क्या आपके वेबसाइट पे कोई कंप्लेन आई? किसी ने फोन किया, किसी ने लिखा, कोई आपको मैसेज आया? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ किसी के पास आया, किसी न्यूज चैनल के पास आया या कांग्रेस पार्टी के पास आया कि उनको वोटर हैं और उनको वोट नहीं बन रहा है या वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है? पर सर अंत में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि जो घुसपैठिए हैं या कहीं कोई बांग्लादेश से आ गया है, उन लोगों को लेकर आपने बात कही, लेकिन नेपाल में जो नेपाल और भारत का जो बिहार के जो कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जिसको कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है, वहां पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो अगर वो भी छूट जाएंगी तो उनके लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा? नहीं, कोई छूटने वाला नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं। देखिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके चैनल पर बैठा हूं और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जितना चुनाव कांग्रेस आरजेडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है। वोटर वो कैसे पता कर लिया कि कौन वोटर उनके हैं जो कट जाएंगे, कौन इसके? क्या वोटर के माथे पे लिखा होता है, उनके चेहरे पे लिखा होता है? हम भी चाहेंगे कि एक वोटर का भी नाम न छूटे, और जो आपने कहा कि अगर बॉर्डर पर भी ऐसे लोग हैं उनकी भी चिंता की जाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो पूरी तरह चाहते हैं कि कहीं भी हमारे जो वैलिड वोटर हैं वो छूट न जाए, तो ऐसे उनको भी कोशिश करनी चाहिए और पार्टी को, लेकिन वो कोशिश नहीं करके सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सॉफ्ट टारगेट क्यों हो गया है, ठीक है, ये बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देख लिया, आज एक आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है, कोई जंतर मंतर धरने पर बैठा है, कोई आंदोलन पटना में हो रहा है, कोई सरकार के खिलाफ कोई एक मुद्दा नहीं है सर, इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, तो एक चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट करके राहुल गांधी और ये लोग हमला कर रहे हैं। अब पूरी तरह इनका बंद चक्का जाम फेल हुआ है, फ्लॉप हुआ है। शाहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी एंड पुटिंग द व्यू ऑफ योर पार्टी फॉरवर्ड ऑन दिस. This is a very important issue as well because, you know, the intention, of course, is also that there will be other states which will also come into this SIR drive. The questioning is just before the elections. One key component of the India bloc in Bihar is Pappu Yadav, independent MP from Motihari, known for his proximity to the Congress party. And Pappu Yadav was also, you know, participating in this entire chakka jam and the agitation. Sadly, we saw those visuals which went viral of Pappu Yadav trying to get onto the truck where Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav are, and he was denied that entry into the India bloc. What does Pappu Yadav have to say about him being denied, and of course the entire exercise, and what will be the way forward for opposition? I spoke to him earlier. Take a look.
मेरे सामने में आप लक्ष्य है। इतनी बार जीते हुए नेता हैं, आप एक सिटिंग एमपी हैं, इतना सम्मान है आपका बिहार में। आप खुद कहते हैं राहुल गांधी का आप बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके बाद ये जो अपमान है, ये आपके जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो जनता आपके पीछे खड़ी है, उनका भी तो सर अपमान है ना, अगर आपको इस तरीके से चढ़ने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान और सह करके चुपचाप रहूं। जनता के कारण है भैया, जनता यदि हमको चाहती तो जिस हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूँ। चंदन सिंह की हत्या भी वहाँ हो, नरसंहार हो वहाँ हो, सिवान की घटना वहाँ हो, ढाका की घटना वहाँ हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूँ। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी दे दिया। और उस परिस्थिति में भी मैं हालात ख़राब है। अब मैं क्या बोलूं आपको कि जनता ही सर्वोपरि है, और मैं विकास और गरीब की ज़िंदगी के लिए बात करता हूं हर परिस्थिति में। मैं आपसे अब और उसके अलावा मैं जी नहीं सकता हूं। मैं आपको बता दूं जी, मैं अब आपसे ये पूछता हूं, ये जो आज पूरा महागठबंधन का हल्ला बोल था इलेक्शन कमीशन की इंटेंसिव ड्राइव के खिलाफ, जिसमें आपने भी जोरदार प्रदर्शन किया, बाकी सारे नेता भी इकट्ठे हुए, सवाल अब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो एक बार फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी कहती है कि आप फिर से एनआरसी वाले ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, चुनाव के अंदर उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जो देश का नागरिक है। का अपना राइट है। आप हमको सुनिए ना, देश में हम पैदा लिए, हमको नागरिकता चुनाव आयोग कैसे मांग सकता है? ये राइट है? ये कोई लॉ कहता है? ये कोई लॉ कहता है क्या? आप हमको बताइए। और दूसरी चीज़, आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाई, और तीसरी बात, आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आधार कार्ड से सब कुछ क्या के मानते ही नहीं है। चौथी चीज़, 4 करोड़ जनता बाहर है, 73% लोग के बारे में आप जान लीजिए कि वो बाढ़ से प्रभावित है हर कीमत पर। तो मैं आपसे, आप हमको मांग रहे हैं मेरा जन्मपत्री, हमसे मांग रहे हैं रियासी, हमसे मांग रहे हैं 10 कार्ड। तो भैया आधार कार्ड का क्या मतलब? आधार कार्ड का क्या मतलब? अब जिस तरीके से चुनाव आयोग एक किसी पार्टी का इंस्टीट्यूशन पूरा गिरवी रखा चला गया है, चुनाव आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। हमारे नेता राहुल गांधी लड़ते रहे हैं और ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो आप हमको बताइएगा, इसमें एनआरसी, सीए, बीजेपी जो बात करती है, किस दलित, एसटी, ईबीसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? 14% भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। आपको रिहायशी कितने लोगों के पास है? किसके पास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? पर तो ये क्यों माना जा रहा है कि अगर ये होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनके भी तो ऐसे कई वोटर हो सकते हैं जिनके पास ये सब नहीं मिलेगा, तो ये क्यों मान के चला जा रहा है कि फायदा उन्हीं को होगा? नहीं, आप देखिए ना भैया, एक बार बीजेपी को फायदे या घाटे का, बम्बई में क्या हुआ? फायदे घाटे का सवाल नहीं है। आप हमारे जन्म, मेरा बाप दादा सब यहीं जन्मा, हमको आप क्या कहिएगा? हम कहाँ जन्मे? हम विदेश के हैं। मेरा जन्म यहाँ हुआ, हमको आप चाइना का और पाकिस्तान का बना दीजिएगा। और आज़ादी के बाद जो वोट का जो कास्ट हुआ, वोट जिस तरीके से पड़े, क्या वो सब गलत था? 11 साल से नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम थे। अटल जी, क्या वो तरीका गलत था? तो आज तक जो वोट गिरी वो बिल्कुल गलत था। अब जो हो रहा है वो सही है। ये एक्सरसाइज हुई थी, तब तो किसी को परेशानी नहीं थी। 6 महीना पहले आपने नहीं भैया, नहीं, ये एक्सरसाइज आज 22-20 साल के बाद हुई है। और चुनाव जब 3 महीना बचे हैं, उसके बाद जब बाढ़ है, तूफान है, उसके बाद आप बाप कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। और आप तय कर दीजिएगा 6 फॉरम में जो आपको वोट नहीं दिया, आप उसको हटा के कोई नया क्लियर कर दीजिएगा। 2 करोड़ के लगभग लोगों को आप निकालना चाहते हैं, जो इंडियन है, जो गरीब है, जो 4 करोड़ बाहर है, उसमें तो सभी जात के लोग हैं, ऊंची जात है, पिछड़ी जात है। आप याद करिए अरुण जेटली का वो बिल, क्या वो बिल लाए थे कि जो लोग छोड़ के चले गए या जो यहां नहीं है,
ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है साल 2 साल के बीच, साल भर में 3 महीने काम करना, जी। उसको देखना कौन है कौन 6 साल से नहीं है, किनको देखा जाए। वो बिल लाए हुए अरुण जेटली। ठीक है, मैं एक अंत में एक छोटा और सवाल आप- आपसे और पूछना चाहूंगा अभी जाने से 3 पहले। महीना सर, बाद चुनाव है, सुप्रीम आपने- कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई है इसके खिलाफ। अगर कोर्ट भी इस पर स्टे नहीं देता है और उसके बाद ये चलती रहती है एक्सरसाइज ऐसी, तो क्या आप और विपक्षी दल चुनाव का बायकॉट करेंगे? रास्ता क्या होगा आपके पास? भैया ये तो हमारे नेतृत्व और गठबंधन तय करेगा, लेकिन सदन भी नहीं चलने देंगे और हम लोग फुल बेंच में जाने की भी बात करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चुनाव आयोग काम कर रही है, हर कीमत पर देश के 140 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।